Hello friends, welcome back again for another lecture of mathematics. We are discussing commission, brokerage and discount. 11 problems अपन ने solve कर दिए बेटा. In the exercise number 1.1 हम लोग कर रहे हैं the 12th problem. A bookseller received rupees 1530 as 15% commission on the list price. Find the list price of the books. Okay, a bookseller receives 1530 as 15% commission. So ये 1530 क्या बेटा? It is the commission actually received, rupees 1530, and the rate of commission is given as कितना बेटा? 15%, and we have to find the list price. List price is nothing but the sales price यहाँ पर, because both are one and the same. Okay, what was the cost of the book? That is the sale price. अपने को पता है बेटा, the commission is nothing but sales price multiplied by R divided by 100. What we get? Commission तो पता है अपने को 1530, sales नहीं पता. Rate of commission is 15% upon 100. तो कितना आएगा बेटा sales? Sales will be 1530. 100 क्या होगा बेटा? Cross multiply होगा and it will be in the numerator divided by 15. 15 ones are 15. ये 0 और ये 2. So what will be the sales? Sales will be rupees 10,200. Okay. Now for the commission of 1530, 10,200. Right. So let's go for the next one. अब next one में क्या है बेटा? A retailer sold a suit for 8832 after allowing 8% discount on the marked price. Marked price पे 8% discount है. मतलब what is this? This is the first discount, which is the trade discount, and further 4% cash discount. उसके ऊपर वापस 4% निकाला उसने. That is the cash discount. Now if you made 38% profit, find the cost price and the mark price. We have to find both the cost price and the mark price. So अभी क्या क्या मिलेगा देखो बेटा. अभी यहाँ पर first one, what he has given? He has given the 8832, which is the net price. Net price में उसने ये क्या बोला है? सूट बेचा हुआ है 8832. Okay बेटा. Now first one is the discount 1. Discount 1, D1 बोलेंगे अपन, which is the trade discount. ये कितना बेटा? 8%. और उसके बाद discount 2, which is the cash discount, we will call it as D2, which is 4%. Okay बेटा. Now the profit is 38%, and what we have to find is the cost price, also the list price. तो अभी देखो, सबसे पहले अपन cost price आसानी से निकाल सकते हैं बेटा. अपने को पता है, क्या पता है कि जो profit होता है, it is always calculated on the cost price. Profit is always calculated on the cost price. तो फिर कितना आएगा बेटा? 38% on the cost price. Correct. Now if it is 38% of the cost price, तो अपन क्या करेंगे? Let the price be 100. तो selling price कितना आएगा बेटा? 138. क्यों? क्योंकि उसको 38% प्रॉफिट मिल रहा है. परसेंटेज प्रॉफिट अपन ने 100 काय के लिए लिया है कि कैलकुलेशंस अपना इजी हो जाए. 100 पे 38%, दैट इज 38 रुपीज. अपन जब ऐड करेंगे सेलिंग प्राइस, तो ये क्या आएगा बेटा? सेलिंग प्राइस अपने को पता है, द कॉस्ट प्राइस प्लस द प्रॉफिट, मतलब 138. दिस इज द सेलिंग प्राइस. नाउ एक्चुअली द सेलिंग प्राइस इज 8832. देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? ओके, तो कैसा है बेटा? कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 138. Now the cost price we have to find out when the selling price is 8832. Correct. We will cross multiply this, so we get 138x is equal to 100 into 8832. Correct. So here x will be 100 into 8832 divided by 138. Right. Now we can go on solving this. इसको थोड़ा सा अपन easily solve कर सकते हैं. We can use the log tables और directly अपन इसको divide कर सकते हैं. Don't use the calculators. Calculators are not allowed in the exams. मैं कई बार आपको repeat कर चुका हूं बेटा. Right? So now we will divide it. 69. कितना? 69. And this will be 4416. Now I can divide this by 3. So I will get 23. I will get 1. 14 मतलब 472. Okay. Now I can easily divide 1472 by 23. कितना मिलेगा बेटा? 23 into 5 will be 115. और अगर 6 किया तो कितना आएगा? 8 and 13. We get 92. 23 4s are correct. 23 4s are कितना था? 92. So what we get?
X is 6400. So the cost price will be rupees 6400. Okay बेटा, एक बार आपको कॉस्ट प्राइस मिल गई, नाउ वी हैव टू फाइंड द लीस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस अपन ने किस पे लिया है बेटा? ऑन द एक्चुअल सेलिंग प्राइस, उस पे ही प्रॉफिट है बेटा, करेक्ट ना. इसके लिए अपन ने डायरेक्टली 8832 ये सेलिंग प्राइस लेके अपन ने कॉस्ट प्राइस निकाली है, राइट. नाउ विल गो फॉर द टू फाइंड द लीस्ट प्राइस. अपने को पता है अगेन, लेट द लीस्ट प्राइस बी 100. अभी पहला उसका D1 कितना है बेटा? D1 इज 8%, बराबर. दैट इज 8 अपॉन 100 इंटू 100, मतलब कितना आएगा बेटा? 8 रुपीज डिस्काउंट आएगा. सो व्हाट विल बी द इनवॉइस प्राइस? इनवॉइस प्राइस विल बी लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट इज D1. 100 माइनस 8 कितना आएगा बेटा? 92 रुपीज विल बी द इनवॉइस प्राइस. नाउ इनवॉइस प्राइस पे वापस 4% डिस्काउंट है, 4% ऑन इनवॉइस प्राइस. ये क्या है बेटा? D2, दैट इज द कैश डिस्काउंट. तो कितना आएगा बेटा? D2 विल बी 4 इंटू 92 अपॉन 100, करेक्ट. सो ये कितना आएगा बेटा? वी विल डिवाइड दिस बाय 4, ये 25 आएगा और ये आएगा 23. सो हाउ मच इट कम्स बेटा? 92 डिवाइडेड बाय 25. और अभी ये आप क्या कर सकते हो बेटा? यू कैन सॉल्व इट यूजिंग द लॉग टेबल, या डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो. 25 3 75 आते हैं बेटा. 17 बचा, डेसिमल लेंगे तो 6 आएगा और 8 आएगा. कितना आएगा बेटा? 3.68. ना अगर मैं 3.68 इसको 92 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? इनवॉइस प्राइस माइनस D2, दैट इज द कैश डिस्काउंट. क्या मिलता है बेटा अपने को? वी नीड द नेट प्राइस, वी गेट द नेट प्राइस. तो इनवॉइस प्राइस वाज हाउ मच? 92 माइनस 3.68, ये कितना आएगा बेटा? 88.32. 88. अब अपने को क्या पता चलता है? अपने को पता चलता है when the list price is 100, the net price will be कितना बेटा? 88.32. Now when the net price is 8832, what will be the list price? सीधा कैलकुलेशन से बेटा 2 डेसिमल्स आगे किया तो ये 100 अपने को मिल जाएगा. We will cross multiply it. 88.32 multiplied by x is equal to 100 into 8832. So your x will be 100 multiplied by 8832 divided by 88.32. करेक्ट. 2 डेसिमल है बेटा, तो ये डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे अपन? 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. किसको? द न्यूमरेटर इंटू 100 डिवाइडेड बाय what? 8832. Now this 8832 will get cancelled to get rupees 10,000. So the 10,000 will be the catalog price, the least price. Rupees 10,000 will be the least price. दो चीजें फाइंड करनी थी, एक तो लीस्ट प्राइस और दूसरा 400 was the cost price. So this is how we can find the answers to this question. Let's go for the next one. An agent charges 10% commission plus 2% del creditor. अब मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, del creditor क्या रहता है बेटा? It is the extra commission which is paid to the commission agent. Why? Because it takes the responsibility of the payment from the buyer. बायर का जो पेमेंट आ रहा है बेटा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का 2% वो क्या लेता है? एक्स्ट्रा लेता है. डायरेक्टली अपन इसको ऐड करेंगे एंड द नेट कमीशन विल बी 10 plus 2, that is 12%. Actual commission 10, del creditor 2, so total commission will be 12%. And the goods sold are 37,200. So we can say the sales कितने बेटा? रुपीज 37,200. And the commission rate, the rate of commission, how much beta? 10% plus 2%, that is 12%. Simple. Now we can find the commission directly. Commission is equal to sales into rate of commission upon 100. Already we have seen this. ये कितना आएगा बेटा? 37,200 into 12 divided by 100. ये 0 चला जाएगा. So what we get बेटा? 24 to carry 12 sevens are, yes बोलो 84 and add to it to get 86. 12 3 36 and 8 will be 44. So how much commission will he get? He will get rupees 4,400
64 as the commission. It is as straightforward and simple as this. Okay, so let's go for the next one. That is the last one, 15th one of this exercise. A wholesaler allows 25% trade discount and 5% cash discount. What will be the net price of an article which is marked at ₹1600? तो अभी ये देखो, ये हो गई मार्क प्राइस आपकी, ये क्या हो गई बेटा, इट इज योर मार्क प्राइस. अभी 25% ट्रेड डिस्काउंट पहला डिस्काउंट है और दूसरा 5% कैश डिस्काउंट है, एंड विल हैव टू फाइंड द नेट प्राइस. मार्क प्राइस दिया है बेटा, उस पर से नेट प्राइस निकालना है, बिल्कुल आसान है. तो क्या है, द लीस्ट प्राइस which is ₹1600. now D1 which is the ट्रेड डिस्काउंट, ये दिया है उसने 25% एंड द कैश डिस्काउंट इज 5% D2. ओके, अब देखो बेटा, अपन D1 निकालेंगे. D1 इज 25% ऑफ द लीस्ट प्राइस, मतलब 1600. कितने आएंगे बेटा, ये ₹400. 400 लीस्ट प्राइस में से कम हो जाएगा, सो वी विल गेट व्हाट, इनवॉइस प्राइस which is equal to least price minus D1, that is 1600 minus 400 which is 1200 will be the invoice price. अब invoice price पे वापस 5% डिस्काउंट है, that will be D2 which is 5% of the invoice price, that is 1200. ये चले जाएंगे बेटा, तो D2 कितना आएगा, D2 will be 60 rupees. Okay, so the net price, we know the formula for the net price. क्या है बेटा, ये invoice price minus D2, that is the cash discount, which will be 1200 minus 60, that is 1140. कितना आएगा बेटा, 1140 will be the net price. Okay, so this is how we can solve this. अब देखो बेटा, ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो चुकी है. Now we are going to go for the next exercise, that is discount. इसके आगे का पार्ट देखने के पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ. हमारे जो HGCA लेक्चर्स है वो आपके सामने दो तरीके से आते हैं. एक तो YouTube के फ्री लेक्चर्स है जो अभी हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. दूसरे जो है वो है प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस. अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो सारे फैकल्टीज आपके सामने है, नेहा मैम है, सारंग सर है, प्रीति मैम है, धीरज सर है, ये फेस टू फेस आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे. ये बिल्कुल लाइव क्लासेस है. मिलेंगे कहाँ, हम मिलेंगे जीमीट के ऊपर. और अगर बाय चांस आपने कोई लेक्चर मिस भी किया तो भी आपके लिए रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, राइट. तो फिर ये सारी चीजें प्लस ये सारी चीजें आपको मिलेगी प्रीमियम बैच में, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है. You can get all this, okay? And if you are interested, कौन कौन से कोर्स है हमारे पास, 11th, 12th, BCom and what the CA Foundation course also. अगर आप में इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है, आपको किसी और जानकारी की जरूरत है, then you can contact these two numbers जो आपके सामने है. तो चलो let's continue with our lecture. अब इसके लिए अपन छोटा सा एक एग्जाम्पल देखेंगे बेटा. Now suppose आई एम इन द मार्केट, जहां से मुझे ये पेन खरीदनी है बेटा. आई हैव टू बाय दिस पेन. नाउ दिस पेन कॉस्ट ₹500. अगर मैं उसको कैश पैसे आज के आज दूं तो ये कितने में मिलेगा मुझे, ₹500 में मिलेगा. अब मेरे जेब में ₹500 नहीं है, तो मैं क्या करता हूं बेटा, उसको बोलता हूं कि ये पैसे मैं आपको 6 महीने के बाद देने वाला हूं, या सम फर्दर डेट. तो फिर सपोज आफ्टर 6 मंथ्स में उसको दे रहा हूं. आफ्टर 6 मंथ्स में मैं उसको ₹500 दूंगा क्या बेटा, वो लेगा क्या ₹500? नहीं, वो क्या करेगा, उसमें कुछ इंटरेस्ट ऐड करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, एंड से वो मेरे से लेगा ₹600. अब 6 महीने के बाद मैं उसको दे रहा हूं कितने, ₹600, राइट. आज तो मुझे ₹500 देने थे, 6 महीने के बाद मैं उसको ज्यादा पैसे दे रहा हूं, दैट इज 600. तो ये जो मैं आज दे रहा हूं बेटा 500, इट इज कॉल्ड एज द प्रेजेंट वर्थ. क्या बोलते बेटा इसको, प्रेजेंट वर्थ. एंड आफ्टर 6 मंथ, मतलब नॉट जस्ट 6, 8 months, 10 months, वट एवर, आफ्टर द पीरियड जब मैं उसको पैसे दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज द सम ड्यू. क्या बोलते बेटा इसको, सम ड्यू. अब ये जो सम ड्यू है ना बेटा, इसको और एक नाम है,
इट इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू। अब इसको फेस वैल्यू क्यों बोलते हैं, देखो बेटा, जैसे ही मैं उससे 500 रुपए की चीजें खरीदता हूं तो मैं वो बोलता है और मैं 6 महीने के बाद का उसको क्या बोलता हूं, प्रॉमिस देता हूं, तो मैं उसको एक चेक या एक प्रॉमिसरी नोट लिख के देता हूं कि बाबा भैया 6 महीने के बाद मैं आपको 600 रुपया देने वाला हूं। अब 600 रुपया मैं उसके ऊपर लिख के दे रहा हूं, उसके फेस के ऊपर होती है दैट वैल्यू, इसके लिए इट इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू ये क्या होती है बेटा, ये सम ड्यू जैसे ही होते हैं, वही होता है सम ड्यू एंड द फेस वैल्यू जो आगे मिलता है, राइट बेटा। अब देखो मुझे कितने ज्यादा देने पड़े हैं, जितने ज्यादा देने पड़े हैं इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, ट्रू डिस्काउंट, एंड वी विल कॉल इट एज टीडी इन शॉर्ट। तो टीडी क्या हो गया बेटा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ड्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द ट्रू डिस्काउंट। ऑल्सो द ट्रू डिस्काउंट जो है बेटा, ट्रू डिस्काउंट इज द इंटरेस्ट ऑन द प्रेजेंट वर्थ। याद रखो बेटा, इट इज द इंटरेस्ट ऑन द प्रेजेंट वर्थ। तो फॉर्मूला कैसा है बेटा, जैसे कि अपन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 आ जाएगा बेटा। ट्रू डिस्काउंट क्या आएगा, द प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। दैट इज the first point to remember is true discount is interest on the present worth। ठीक है, true discount is the interest on the present worth। therefore अपने को क्या मिलता है बेटा, अगर ये ट्रू डिस्काउंट अपन प्रेजेंट वर्थ में ऐड करते हैं, प्रेजेंट वर्थ में अपन ट्रू डिस्काउंट ऐड करते हैं तो वी गेट द सम ड्यू। ओके, अब देखो बेटा अपन ने अभी देखा है PW प्लस TD इज इक्वल टू HD, और ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला जो है वो है PW इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू HD। PW अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा बेटा, PW को मैंने कॉमन ले लिया है, अंदर क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस NR अपॉन 100 दैट विल बी योर सम ड्यू, दैट विल बी आवर सम ड्यू। करेक्ट बेटा, present worth into 1 plus NR into 100. So this again we can use as the second formula. Keep noting down this formula, बाद में अपन सब एक साथ इसको डिस्कस करेंगे, पहले अभी नोट करते जाओ, right? So you understood these three things, what is the present worth, what is the sum due, what is the true discount। ये सारी चीजें आपको पता चल गई है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं बेटा। अब जिस दिन मैंने ये चीज खरीदी है 500 रुपए में, that day is called as the डेट ऑफ ड्रॉइंग। मतलब जो मैं प्रॉमिसरी नोट लिख के देता हूं बेटा अकाउंट्स में, आप उसको बिल बोलते हो। जिस दिन ये बिल ड्रॉ होता है बेटा, इट इज कॉल्ड एज द डेट ऑफ ड्रॉइंग, इट इज कॉल्ड एज द डेट ऑफ ड्रॉइंग। और डेट ऑफ ड्रॉइंग को जब अपन ये पीरियड ऐड करेंगे 6 मंथ 8 मंथ वॉट एवर, तो जो डेट मिलती है बेटा अपने को, इट इज कॉल्ड एज ड्यू डेट। अब ये नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं अपन, अभी उसको नॉमिनल क्यों बोलते हैं अपन दो देखेंगे बेटा। सो देखो बेटा, अभी जहां से अपन ने डेट ऑफ ड्रॉइंग जिस दिन अपन ने बिल लिया, एंड देन द पीरियड ऑफ द बिल, कितना टाइम है अपना पीरियड ऑफ बिल, तो अपने को मिलता है बेटा वी गेट द नॉमिनल ड्यू डेट। अब नॉमिनल क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि जिस दिन ड्यू डेट होती है उसी दिन वो मुझे के पैसे नहीं मांगेगा, अरे भैया आज दे दे पैसा, नहीं, वो मुझे 3 दिन की क्या करेगा बेटा, 3 दिन की मुझे और ग्रेस पीरियड देगा। इफ यू ऐड 3 days टू इट, हमेशा 3 दिन ही है बेटा, इफ यू ऐड 3 days टू इट तो अपने को मिलती है लीगल ड्यू डेट, एंड दिस वन इज द फाइनल डेट। इसी दिन पे पैसे उसको देने हैं, लीगल ड्यू डेट। ओके बेटा, तो पहले तो अपने को नॉमिनल ड्यू डेट मिलती है, 3 days जब अपन उसको ऐड करेंगे तो अपने को उसको लीगल ड्यू डेट मिलती है। ओके बेटा, अब इसी में अपने को कुछ चीजें और ऐड करनी है, लेकिन उसको अपन थोड़ी देर के बाद देखेंगे। पहले अब हम लोग विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, लेकिन कुछ फॉर्मूले देखने के बाद। ओके, सो लेट अस सी सम ऑफ द फॉर्मूलेज व्हिच आर गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। इसने एब्रिविएशन दिया है, प्रेजेंट वर्थ इज PW, उसको P भी बोल सकते हैं, सम ड्यू द फेस वैल्यू SD और FV भी बोलते हैं, ट्रू डिस्काउंट अपने को पता है इज द TD, बैंकर्स गेन ये अगर मैं आपको बाद में बताऊंगा। इतने 3 अपन ने चेक किए। फॉर्मूले जो है जो अपन ने देखे बेटा, यहाँ पर SD है, SD इज PW प्लस TD, TD PW इंटू N इंटू R अपॉन 100,
अब एक और चीज है बैंकर्स डिस्काउंट, उसको अपन बाद में देखेंगे, अपन आगे का देखेंगे बेटा। नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द सम ऑफ रुपीज 10,920 ड्यू 6 months hence at 8% per annum सिंपल इंटरेस्ट। अपने को अभी प्रेजेंट वर्थ चाहिए किस पे? 10,920 पे ड्यू 6 months। अभी उसने क्या बोला है? 10,920 ड्यू 6 months hence, मतलब ये 10,920 जो है वो क्या होगा बेटा? इट विल बी द सम ड्यू, इट विल बी द सम ड्यू। और अपने को प्रेजेंट वर्थ फाइंड करना है। एन दिया है बेटा उसने 6 months, द पीरियड ऑफ द बिल इज 6 months एट 8% पर एनम। ओके, तो वी विल फाइंड इट। क्या क्या दिया है उसने? उसने दिया है द सम ड्यू। सम ड्यू इज 10,920, पीरियड ऑफ द बिल इज 6 months and the rate of interest is 9%. We have to find the present worth करेंगे। Yes, 10,920 due 6 months at 8% है बेटा, तो rate of interest अपन ने 9 लिखा है, it is 8%. Sum due is equal to present worth 1 plus NR upon 100। डायरेक्टली ये शॉर्टकट फॉर्मूला से अपन इसको कर सकते हैं। इतना पूरा अपन को हर बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं अगर अपन फॉर्मूला भूल गए तो अपन स्टार्टिंग से भी अपन इसको कर सकते हैं। सो लेट अस डू राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। सम ड्यू अपने को पता है प्रेजेंट वर्थ प्लस द ट्रू डिस्काउंट, विच इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। क्या होता है बेटा? इट इज द इंटरेस्ट ऑन द सम ड्यू, इट इज द इंटरेस्ट इनटू आर अपॉन 100। प्रेजेंट वर्थ को अगर अपन ने कॉमन ले लिया तो आएगा 1 प्लस एन आर अपॉन 100, दैट विल बी अवर सम ड्यू। सम ड्यू पता है बेटा अपने को 10,920 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ 1 प्लस 6 months है बेटा। मंथ्स को अपने को क्या करना पड़ेगा? ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर एनम, मतलब पर ईयर है, इनटू 8 अपॉन 100। ओके बेटा, एन आर अपॉन 100। नाउ 6 2 जार 2 4 जार एंड 4 25, ये अपन छोटा इधर कर सकते हैं। तो 10,920 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ 1 प्लस यहाँ पर 1/25 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर अपन करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा? 25 plus 1 upon 25, that will be 10,920। तो प्रेजेंट वर्थ कितना आएगा बेटा? प्रेजेंट वर्थ विल बी 10,920 multiplied by 25 divided by 26, that will be the present worth। now we will go on solving this। छोटा छोटा करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे 13 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 4 6 5 4 6 and 0। now अभी 13 है तो लेट्स डिवाइड इट बाय 13। 13 4 जार 52, 26 बचा, मतलब 4 to 0। आई होप दिस इज नॉट योर फेवरेट नंबर। 420 into 25, okay, 0, 25 2 जार 50, 5 will be carried and 25 4 जार 100, add 5 to it, so the present worth will be rupees 10,500 and the sum due is 10,920। डिफरेंस कितना है बेटा? 420 का। ओके बेटा, सो दिस इज हाउ you can solve this problem। ये सेम है बेटा, कैसा बेटा? सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है बेटा? प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू n अपॉन 100, सेम फॉर्मूला है बेटा। सिंपल इंटरेस्ट की जगह अपन क्या लेते बेटा? ट्रू डिस्काउंट p, दैट इज द प्रेजेंट वर्थ, r n अपॉन 100, ये तो सेम ही है। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है। ओके ओके, सो लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन। What is the sum due of rupees 8,000 which is due 4 months hence at 12.5% per annum? तो sum due फाइंड करना है, और ये 8,000, what is the sum due? sum due फाइंड करना है। 8,000 क्या रहेगा बेटा? it will be our present worth, right? so write down here the present worth is rupees 8,000, this is the second one। उसके बाद n दिया है और r दिया है। कितना दिया है बेटा? n is 4 months and 12.5 is the interest। 4 months 12.5% is the rate of interest। ओके बेटा, तो सबसे पहले अपन ट्रू डिस्काउंट निकालेंगे, that will be the better way। ट्रू डिस्काउंट will be present worth into n into r upon 100, क्योंकि आपको अब ये लर्न हो गया होगा कि जो ट्रू डिस्काउंट है it is the interest on the present worth। तो it will be 8,000 into 4 months, 4 by 12, rate of interest is 12.5 upon 100। we can easily cancel the zeros, 4 3 are 12। अब यहाँ पर 34.16, okay, if I multiply this
तो ये आएगा 41.6 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 आएगा, 8 6 48, 8 में 8, add 4 to it 12 and 8 4 32, 33. So 332.8 will be the true discount. So what will be the sum due? Sum due is nothing but present worth plus true discount. Amount क्या रहती बेटा? Amount is principal plus interest. इसके लिए PW plus TD. तो sum due will be PW, which is already given as 8,000 plus 332.8. This will be the sum due, which comes out to be rupees 8,332.8. एक बात याद रखो बेटा, आंसर हमेशा वर्डिंग्स में चाहिए. द सम ड्यू विल बी रुपीज 8,332.8 rupees. Okay, this is how you have found the sum due of the second one. Let's go for the third one. True discount on the sum due 8 months hence at 12% per annum is 560. True discount दिया है बेटा उसने, कितना दिया है? 560 रुपीज. 12% per annum is the interest. True discount is 560 for 8 months. We have to find the sum due as well as the present worth. Okay. Okay. True discount is 5. Discount is rupees 560. N is 8 months. And the rate of interest, we'll check the rate of interest is 12%, and we have to find both sum due and the present worth. दोनों भी अपने को ढूंढना है, राइट बेटा. सो यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट दिया है, उस पर से अपने को प्रेजेंट वर्थ निकालना है. तो अपने को पता है बेटा ट्रू डिस्काउंट क्या रहता? प्रेजेंट वर्थ के ऊपर इंटरेस्ट रहता. सो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. तो ट्रू डिस्काउंट अपने को पता है 560, प्रेजेंट वर्थ तो नहीं पता, लेकिन एन पता है बेटा अपने को. एन इज 8 मंथ्स. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स, दैट इज डिवाइड बाय 12. Multiplied by the rate of interest is 12% upon 100. 12 very easily cancel. So your present worth will be 560 multiplied by 100. ये 100 ऊपर चला जाएगा, divided by 8. 8 7s are 56. So your present worth will be rupees 7,000. Correct ना बेटा? Okay. अब sum due क्या रहता है बेटा? Present worth plus true discount. That is 7,000 plus 560. ये तो यही है उसमें. रुपीज 7560 will be your sum due. ओके बेटा, तो इस तरीके से अपन आसानी से sum due निकाल सकते हैं, राइट बेटा. So we have solved the first 3 problems. The remaining we'll see in the next lecture. Till then, एक बार वापस सारे sums देख लो, जो फॉर्मूला मैंने दिया है वो भी देख लो, and I'll give you some more formula in the next lecture. ओके बेटा, बाय. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीज़ें आपको पसंद आई है. ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है जिसके जरिए से आप हमें फॉलो कर सकते हो. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.